یا نبی نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، مقرر خصوصی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم لوگ تو نہیں سمجھ رہے تھے لیکن آپ تو سمجھ رہے تھے. یہ آپ کی زبان ہے الحمدللہ. اپنے نرالے انداز میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور ائمہ اربعہ کے عقیدے کی روشنی میں آپ تک وہ روشنی دلوں تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. اسی درمیان اور اس وقت ایک سعادت یہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہے اور جنہیں آپ جانتے ہیں حضرت مولانا سید امیر القادری صاحب قبلہ. یہ وہ چراغ ہے جہاں جلے وہاں روشنی ہے الحمدللہ. حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضرت نے ایسے چراغ روشن کیے ہیں جن کی روشنی پورے ہندوستان ہی نہیں اکناف عالم میں یہ روشنی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت نہیں ہے چونکہ پھر حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے, حضور داعیہ کبیر بھی تشریف لانا ہے. تو بس میں اعلیٰ حضرت کے ان دو شعر کے ساتھ میں سید صاحب قبلہ کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں. آنکھیں رو رو کے دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے. میں سونی ہونے کی بات کریں اور آپ سو رہے ہیں. سب مل کے بولو پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ. سب کی آواز آ جائے یا رسول اللہ. ادھر والے بھی کہہ دے یا رسول اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, میرے دھوم مچانے والے. آئیے اللہ کے ذکر کے ساتھ کرسی خطابت پر سید صاحب قبلہ جلوہ گر ہوں گے اور ان کے حوالے میں کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون, أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست منی عینی دا. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی. بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں سے درد مندہ اور
غریبوں کے غمگسار ہوں، فقیروں کی سروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھے، یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ لوگوں نے معاذ اللہ پاگل کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ الناس سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حالانکہ الناس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائیں، تو یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کو معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ آمنو کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوف کی طرح، معاذ اللہ ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ آخر منافقین نے یہ جو جواب دیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور منافقین صحابہ کو کیا کہہ رہے؟ صفی کہہ رہے، بے وقوف کہہ رہے، پاگل کہہ رہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا، روزہ رکھنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا، حج کرنے والے کو تو کوئی پاگل نہیں کہتا۔ تو یہ صحابہ کرام کو منافقین نے پاگل ہونے کا طعنہ کیوں دیا، بے وقوف ہونے کا طعنہ کیوں دیا؟ تو وہ صحابہ کرام کی ان اداؤں کو دیکھ کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ وضو کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنے سینے پہ ملتا، اور وہ پانی کا تبرک لینے کے لیے ایک دوسرے سے ایسی سبقت لے جاتے، یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ نہ پڑے، آپس میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام اگر تھوک دیتے تھے تو حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک، حضور کا تھوک مبارک وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نالین اتارتے تھے تو وہ نالین کو زمین پہ رہنے نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ نالین اٹھا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی تو ان کو صاحب نال ہی کا لقب دیا گیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑی آستین کے کپڑے سلانے لگے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نالین کو اتار دیتے تو وہ اپنی ہاتھوں میں نالین کو لے لیتے اور آستین میں چھپا لیتے، اور جتنی دیر تک حضور علیہ السلام مصروف رہتے وہ نالین کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر یوں بیٹھے رہتے۔ ان اداؤں کو منافق کہتے، یہ تو پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کی سی دیوانگی کو قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور فرمایا او منافقو تمہارا ایمان قبول نہیں ہے کیونکہ تم نبی سے عداوت رکھتے ہو، ایمان تو اس کا قبول ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، سعد و سعید کہتے ہیں، طلحہ و زبیر کہتے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، اے ابن مسعود تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نبی پاک کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہتا، حضور کی نالین کو سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ صفات دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر اللہ اپنے نازل نہ بھی کرتا
तो भी लोग हुजूर की खूबसूरती को देखकर मुसलमान हो जाते। इतना हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को दिया था। मौलाए कायनात सैयदना शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल, हुजूर के रुखसार, हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था कि हुजूर जब दीवार के सामने खड़े होते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इतना ज्यादा था कि अल्लाह अकबर, देखने वाला पहली मर्तबा जब आका को देखता तो उस पर हैबत तारी हो जाती, लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के अखलाक को देखता तो फिर वो हुजूर पर जब वो कुर्बान हो जाया करता था। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गोद में सर रखकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम लेटे हुए थे। ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा देखा और ऊपर आसमान पे चांद था। हजरत आयशा सिद्दीका ने आसमान के चांद को देखा तो आपने शेर पढ़ना शुरू किया, कहा ए आसमान के चांद, तू तो खूबसूरत है ही, लेकिन तू सिर्फ रात को चमकता है। जब सूरज की मौजूदगी होती है तो तू नहीं चमक सकता, तू तो सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमक सकता। देख मेरा चांद जो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। जब मेरे आका ने ये शेर सुना तो मुस्कुरा करके फरमाया, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो ने अर्ज किया, जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम है, हुजूर की खूबसूरती का आलम। आइए हुजूर के हुस्न पर लोग कैसे फिदा थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के बाहर एक तिजारती काफिला है, लोग माल तिजारत लेकर के आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सुबह सुबह के टाइम मदीने तैयबा के बाहर खबर मिली कि एक काफिला रुका हुआ है और उनके पास कुछ अनोखी चीजें हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो आका अलैहिस्सलाम गए तो देखा तो एक ऊंट पसंद आया, एक ऊंट अच्छा लगा तो सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कितने, अगर वो ना आया तो फिर तू कीमत कैसे वसूल करेगा, तू कीमत कैसे वसूल करेगा? और अगर तू वसूल करने अब जाएगा उसके शहर में तो शहर में तो हर आदमी अपने इलाके के अंदर कहते हैं, लोग इस तरह कहते हैं कि अपने शहर में तो चूहा भी शेर बनता है। भाई हर आदमी तो कहा कि अगर तू वसूल करने के लिए जाएगा और उस शख्स ने देने से इनकार किया तो तू उसका क्या कर लेगा? जो सरदार का कबीले का उसको एहसास हुआ कि मुझसे वाकई गलती हुई, मैंने कैसे दे दिया उस शख्स को बगैर किसी कीमत लिए हुए। जब ये बात हो रही थी एक औरत, उसने खैमे से सर निकाला और कहा कि मैं गवाही देती हूं कि शाम को वो शख्स जरूर कीमत लाकर अदा करेगा, शाम को वो शख्स जरूर कीमत लाकर अदा करेगा, और अगर वो कीमत ला के अदा न करे मैं वादा करती हूँ कि पूरी कीमत मैं दूंगी। लोगों ने कहा ए खातून, तू हमारे कबीले की औरत है, जब इस कबीले के मर्द उस शख्स को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो तू कैसे जान पहचान उससे करने लगी? और तू इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि अगर वो शाम को ला कर नहीं देगा तो तू देगी? तो उस औरत ने कहा, जब तुम लोग उससे डील कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सौदा कर रहे थे, तो मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। अल्लाह की कसम वो चेहरा ऐसा चेहरा है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और जब शाम हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो वादा जो किया था उस वक्त बराबर वो रकम अदा फरमा दी। इसका मतलब हुजूर अलैहि सलाम का चेहरा देखने वाले ये बात का फैसला कर लिया करते थे। बल्कि एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई हुजूर के हुस्न पर, हुजूर की खूबसूरती पर। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका अलैहि सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा में नबूवत का ऐलान किया, हुजूर अलैहि सलाम की जो ज़ाहिरी खूबसूरती थी वो भी हमारी तरह नहीं थी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे
تو ہم لوگ جب نیند سے اٹھتے تو چہرے پہ نیند کا اثر نظر آتا ہے، ہلکی ہلکی سی سوجن ہوگی، چہرے پہ کچھ ملال سے آثار ہوں گے، کبھی کبھی آنکھوں میں کچھ کیچڑ بھی بھر جاتا ہے، کبھی کبھی سستی کے آثار چہرے سے نظر آتے ہیں، لیکن کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا جب بھی آقا نیند سے بیدار ہوتے تھے تو نیند کا اثر حضور کے چہرے پہ کبھی نہیں ہوتا تھا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی نے نبی یہ پاک کے سر میں کنگھی کیا، حضور کی آنکھوں میں کسی نے سرما ڈال دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنا کرنا چاہتے تھے تو پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں ہے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی انہی گلیوں میں چلے جاتے تھے اور رسول اللہ کو پا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گود تیرے قربان چمکنے والے۔ حضور علیہ السلام کی جسم اقدس سے خوشبو آتی اور وہ خوشبو صرف مومنوں کو آتی، وہ خوشبو صرف مومنوں کو، کافروں کو نہیں آتی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے مشک میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو خوشبو حضور کے پسینے میں آتی، بلکہ کبھی کبھی شادیوں میں دلہنوں کو جب عطر میسر نہیں آتا، وہ غریب دلہنوں کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان، کہ جب ان غریب دلہنوں کو خوشبو نہیں ملتی تھی اور لوگ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ خوشبو نہیں ہے، تو حضور اپنا پسینہ عطا کر دیتے تھے اور وہ پسینہ دلہنیں بطور خوشبو استعمال کرتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئی اور علیہ السلام کا پسینہ جمع کرنا شروع کیا، اور پھر وہ اس خوشبو کا اثر موجود ہو کہ اگر وہ دلہن کو لگ جائے تو اس کی نسلیں مہکنے لگے، اس کا خاندان مہکنے لگے۔ کوئی ایسا انسان آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو حسن عطا فرمایا۔ تو جب مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، بڑا ہنگامہ تھا، مکے کے لوگ بڑی شیطنت کرتے تھے، بہت مخالفت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا پتھر مارا جاتا تھا، اتنی عظیم ہستی کو پتھر مارے جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر حضرت ارقم کے گھر میں دار ارقم میں پناہ لینے پر جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آقا کو پناہ لینی پڑی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، میرے آقا تو کبھی مجبور نہیں تھے، وہ تو مالک و مختار ہے، لیکن حالات ایسے بنے۔ لیکن یہاں پر ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، آج ہم داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، گانے آج ہماری پہچان بن چکے ہیں، فلموں کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، فلموں کے لیے وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ جو دین ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت ستایا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کو، میرے آقا کے صحابہ کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام پہ پتھر برسائے جاتے تھے، اور کبھی کبھی میرے نبی کے کو چوٹ آتی وجود پاک میں، وجود ناصرین میں چوٹ آتی، تو اللہ کے نبی کے گھر میں اس چوٹ پر کپڑا باندھنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے زخموں پر کپڑا باندھ دیا کرتے۔ ہم لوگ ایک دن میں 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرامین کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنتیں یہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے 1 مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، وہ بھی ختم ہو جاتا، رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور تیسرے مہینے کا طلوع ہوتا اور کبھی کبھی وہ بھی ختم ہو جاتا اور رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا
होता था, हम दो काली चीजों पर गुजारा करते थे, या तो हम खजूर खा लेते और उस पर पानी पी लिया करते, या फिर कभी कभी बकरी के दूध पर हो जाता। इतनी मेहनतें की अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आज ये उम्मत और बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका हुजूर की मेहनतों महसूस नहीं कर रहा है। आज बहुत आसानी के साथ लोग अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल देते हैं। देखो कितने लोग हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो दीन पर अमल करते हैं। अफसोस की बात तो ये है, फिल्म में अगर देखेंगे कि हीरो ने ये किया तो वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये किया तो वो करने में लोगों को शर्म आती है। इश्क रसूल का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, और जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं गुनाहों में। आज मुसलमान जवानों की जिंदगी रातों को अय्याशियों में गुजर रही है। कोई शराब के अड्डे पर, कोई जिना के अड्डे पर, कोई जुए के अड्डे पर। अल्लाह अकबर, जिंदगी जो अल्लाह ने दी है मुसलमानों, वो पहली और आखिरी मर्तबा दुनिया की जिंदगी दी है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, और जब मर जाएंगे इसके बाद फिर कभी दुनिया में आना नसीब नहीं होगा। सोचो अल्लाह के नबी की मेहनतों को सोचो, जो दीन हुजूर ने पहुंचाया, कितनी मेहनत से पहुंचाया है। बल्कि आपको बताऊं, बात निकली है तो बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस दीन की तबलीग में रुकावट डालने के लिए 3 साल तक कैद कर दिया गया। 3 साल तक एक घाटी में कैद किया गया था। उस घाटी को शाब अबी तालिब कहते हैं, और हुजूर के अहले बैत और कुछ खास सहाबा के साथ हुजूर को कैद किया गया, सोशल बाइकाट किया गया, और कहा गया कि मोहम्मद अरबी को कोई चीज बेची ना जाए और उनके साथियों से कोई चीज खरीदी ना जाए। यहां तक के सहाबा फरमाते हैं कि हजरत जाफर तैयार ने कहा कि जो लोग घाटी में कैद थे उनकी हालत ये थी कि वो दरख्तों की पत्तियां चबाकर जिंदगी गुजारते थे। कभी कभी सहाबा की पोजीशन ये होती कि पैरों से अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो उसी को उठा करके चबा देते। 3 साल तक की इस हालत में अल्लाह के हबीब के सहाबा और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग कैद हुए थे उनका ये हाल था। लेकिन आज बहुत आसानी के साथ हम सब दीन से दूर होते जा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर की बीमारी है तो हम 1 मिनट में मिठाई छोड़ सकते हैं, जान बचा लिए, लेकिन ईमान बचाने के लिए हम गुनाह नहीं छोड़ सकते। अगर डॉक्टर की बात पे अमल नहीं करेंगे जान जा सकती है, हुजूर की बात पे अमल नहीं करेंगे ईमान जा सकता। इसलिए कि गुनाह इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाता है, गुनाह की नहुसत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आज हम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। हमने कभी सोचा हुजूर ने कितनी मेहनत, जब अल्लाह के रसूल दावत और तबलीग के लिए लोगों को मुसलमान करने के लिए निकलते और पीछे पीछे अबू जहल निकलता और कहता कि माज़ अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को तकज़ीब करता, हुजूर को झुठलाता, हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्दीक को अज़ियत दी जाती। उन्हीं में से एक वाक़या ये था कि मक्के में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि मोहम्मद कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लोगों ने तकज़ीब की, हुजूर को झुठलाया। वहां पर एक बहुत बड़े ताजिर मक्के में आए हुए थे जिनका नाम था हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी। तुफैल को लोगों ने कहा, बिलखुसूस अबू जहल ने कहा कि तुफैल, एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने नबूवत का ऐलान किया है, इसलिए तुम कभी उसके करीब मत जाना, वरना तुम अपने दीन से फिर जाओगे, तुम अपने दीन से दूर होकर के उसके मजहब में दाखिल हो जाओगे। तो फैल इतने डरे सहमे थे, इतने डरे हुए थे कि वो अपने कानों में कॉटन डालकर, कपास डालकर मक्के में फिरते थे और डरे सहमे रहते थे कि मैं कभी मोहम्मद को देख न सकूं, उनकी आवाज को कभी सुन न सकूं। तो फैल कहते हैं जितने दिन मैं तिजारत का माल लेके मक्के में रहा उतने दिन तक के मैं मोहम्मद अरबी से दूर रहा, न उनको सुनूंगा न उनको देखूंगा। बिल आखिर जब मेरा तिजारत का माल खत्म हो गया
تو میں نے سوچا اب کل میں اپنے وطن جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آؤں گا، کب نہیں آؤں گا، اس لیے طفیل نے یہ کیا، رات کو آدھی رات کے بعد نکلے اور سوچا کہ سب مکے والے بھی سو گئے ہوں گے، محمد عربی بھی سو گئے ہوں گے، میں کعبے کا چپکے سے طواف کر لوں اور صبح کو روانہ ہو جاؤں، نہ محمد عربی سے ملاقات ہوگی، نہ ان کی بات سنوں گا، نہ اپنے مذہب کو چھوڑوں گا، اپنے پرانے مذہب میں۔ کہتے ہیں طفیل جیسے ہی میں نے مطاف حرم میں قدم رکھا، ایک خوبصورت سی آواز آئی، ایک حسین و جمیل سی آواز آئی اور میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز نے میرے کانوں میں ایسا رس کھولا کہ میرے دل نے بے ساختہ کہا، جب آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ کلام بھی خوبصورت تھا، آواز بھی خوبصورت تھی، لیکن ابھی صورت میرے سامنے نہیں تھی۔ میں مشتاق ہو گیا، میں بے چین ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا۔ کلام اتنا اچھا ہے، آواز اتنی اچھی ہے، صورت والا کیسا ہوگا؟ تو جیسے ہی میں گیا تو میں نے دیکھا، واللہ میں نے ایسی شکل صورت کسی کی نہیں دیکھی تھی، اتنا خوبصورت انسان اپنی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ طفیل کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا آپ کون ہے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا، طفیل مجھے کو محبت کہتے ہیں، مجھے کو محبت کہتے ہیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ تو میں نے پوچھا کس کی بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نماز کی دعوت دیتا ہوں، صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں، سچائی کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں۔ تو فیل کہتے ہیں جو غلط پروپیگنڈا تھا اس کا سارا جھوٹا شیش محل میری نگاہوں کے سامنے چکنا چور ہو گیا، اور مجھے احساس ہوا میں نادان تھا کہ اب تک میں ان سے دور کیوں رہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی رعنائیاں تھی۔ ایسا نبی اللہ نے دیا، حسن صورت بے مثال، سیرت بے مثال، علم بے مثال، لیکن افسوس ہم حضور سے ویسا عشق نہیں کرتے جیسا عشق صحابہ کا۔ میں چونکہ اپنی گفتگو بہت لمبی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اصل گفتگو آپ کو حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کی بات جو ہمارے قائد اور ہمارے امین ہیں ان سے سننا ہے، لیکن میں صرف ایک بات بس کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور سے عشق ویسا نہیں کرتے، محبت ایسے نہیں کرتے جیسی ہمیں کرنی چاہیے، جیسی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے دعویٰ کیا ہم عاشق رسول ہیں، ہم اس پہ درود بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامی ہے، کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم دعویٰ عشق رسول کا کر رہے ہیں لیکن ہم عشق کر نہیں پائے۔ آپ محبت کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک وہ بات ہی نہیں کی، عشق کی بات کی لیکن عاشق نہ بن سکے، محبت کی بات کی لیکن محبت کرتے کیسے؟ یہ ہم نے سوچا۔ دیکھو جس سے عشق ہوتا ہے، پہلی بات دھیان سے سننا، یہاں سے وہاں تک، میری بہنیں بھی، میری مائیں اور بہنیں بھی، آج عورتیں بھی بے پردہ گھومتی ہیں، عورتیں بھی مردوں کے سامنے چلی جاتی ہیں، دوپٹوں کو عورتوں نے بھی مفلر بنا لیا ہے، باریک اور پتلے لباس آج عورتوں کے لیے فیشن بن چکے ہیں۔ عورتیں نہیں سوچتی کہ لوگوں نے تو ہمیں زندہ دفن کیا تھا، جس نے ہماری زندگی بچائی وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اسی ہندوستان میں شوہر کی چتا پر عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا، جس نے بیواؤں کو پھر سے سہاگن ہونے کا شعور عطا کیا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، ہم سب کے آقا و مولا ہے۔ تو ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن کبھی عشق کرنا نہیں سیکھا۔ جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے، محبوب کے دل کا خیال کرتا ہے، اور وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب کا دل دکھے، جس سے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم جو گناہ کرتے ہیں، گناہ، سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم نے فرمایا
लोग कहते हैं ये छोटा गुनाह, ये बड़ा गुनाह है, लेकिन फारूक आजम कहते हैं तुम चाहे कितना ही छोटे से छोटा गुनाह करो, लेकिन वो छोटा गुनाह भी अल्लाह के नजर चाहे क्या वो छोटा हो सकता है? और आप सोचो, जो शख्स मां का दिल दुखाए, हदीस पाक में आता है अगर वो शहीद हो जाए तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने मां का दिल दुखाया। बताओ, जब मां का दिल दुखाने वाला शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जा सकता, तो जो नबी का दिल दुखाए वो जन्नत में कैसे जाएगा? हदीस पाक का मफहूम है कि जो माँ बाप का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, तो जो अपने नबी का दिल दुखाए उसकी ज़बान पे कलमा मरते वक्त कैसे आएगा? हम अपने नबी का दिल नहीं दुखा रहे? बोलो, जब हम गुनाह करते होंगे तो हमारे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? कम से कम ये सोच कर तो मुसलमान गुनाह छोड़ दे कि मेरे गुनाह कब्र अनवर में रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। सोचो तो सही, कहा वो नबी जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, और कहा हम कि आज पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात ऐसे काम करते हैं जिससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। उस सिलसिले में एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, किताबुत तव्वाबीन के अंदर एक रिवायत मौजूद है, उसका मफहूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूँ। देखो, जिन्होंने वाकई रसूलुल्लाह से इश्क किया, आका से मोहब्बत की, उनको नबी के दिल का कितना ख्याल था, और हमें नबी के दिल का कोई ख्याल नहीं। आइए दिल के कानों से सुने और फिर सोचे कि मेरे अमल से मेरे आका खुश होते हैं या आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। आज इस महफिल में हमें तय करके उठना है कि इंशाअल्लाह आज के बाद बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेंगे, लेकिन आका के दिल को तकलीफ पहुंचने नहीं देंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह अकबर। किताबुत तव्वाबीन में एक रिवायत मौजूद है जिसका मफहूम, जिसका खुलासा मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि एक जवान था, वो अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। एक जवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, और आने के बाद हुजूर के चेहरे की खूबसूरती और आका के चेहरे का हुस्न देखा। तो हुस्न देखने के बाद वो जवान हुजूर के कदमों पे गिर गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करिए। अल्लाह के हबीब ने उस जवान को कलमा पढ़ाया। वो जवान ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद आका ने फरमाया, ए जवान, जाओ अब अपने काम धाम से लग जाओ। उस जवान ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपसे ऐसा इश्क हो गया, आपसे ऐसी मोहब्बत हो गई, अब मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, अब मैं आपके दहलीज पर पड़ा रहना चाहता हूँ, आपके घर पे पड़ा रहना चाहता हूँ, आपके दर पे पड़ा रहना चाहता हूँ, हुजूर अपने आप ही की खिदमत करना चाहता हूँ, कहीं जाना नहीं चाहता। वो जवान ने जब ये कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जवान को अपनी खिदमत में रख लिया। रिवायतों में उसका नाम इब्न अब्दुल रहमान के हवाले से आया है। इब्न अब्दुल रहमान को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दर पे रख लिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसको किसी काम से भेजते, सहाबा को बुलाना होता, इब्न अब्दुल रहमान को भेज देते, कभी जानवरों को चारा डालना होता, उसको खिदमत सुपुर्द कर देते, लेकिन उससे छोटे बड़े काम लिए जाते थे। एक दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इब्न अब्दुल रहमान से कहा कि जाओ और फलां सहाबी को बुला करके लाओ। इब्न अब्दुल रहमान जैसे ही उस सहाबी को बुलाने के लिए गए तो रास्ते में वो चल रहे थे, चलते चलते अचानक एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि एक औरत थी जो गुस्ल कर रही थी, जो नहा रही थी, अचानक उसके जिस्म पर इब्न अब्दुल रहमान की नजर पड़ी। उन्होंने नजर डाली नहीं, उस जवान ने नजर पड़ गई। औरत गुस्ल कर रही थी, उसकी नजर पड़ गई उस जवान की। अब इसकी तशरीह तो नहीं कर सकते ना कि जब कोई गुस्ल कर रहा हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी। आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि गुस्ल किस हालत में लोग करते हैं। कपड़े पहनकर तो गुस्ल नहीं होता ना। उस हालत में इब्न अब्दुल रहमान की नजर पड़ी, और नजर पड़ी, उन्होंने फौरन नजर फेर ली, यानी टिकटिकी बांध कर नहीं देखा उसको, बल्कि फौरन नजर फेर ली। लेकिन याद रखना, जिसके दिल में जितना इश्क होता है वो उतना ज्यादा अपने महबूब का वफादार भी होता है और फरमाबरदार भी होता है। हम नारे वाले आशिक हैं, हम खाने वाले आशिक हैं, हम अमल वाले आशिक नहीं। जैसे इब्न अब्दुल रहमान की नजर पड़ी उस औरत पर, उसके जिस्म पर नजर फेर ली, लेकिन
नजर फेरी तो दिल में जो इश्क रसूल था उसने फौरन कचोके लगाए, उसने आवाज दी, इब्न अब्दुल रहमान तूने क्या किया? जिन आंखों से तू अपने नबी का दीदार करता है उन आंखों से तूने क्या देख लिया? बस जब दिल में यह तसव्वुर आया कि जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखता है उन आंखों से तूने क्या देख लिया, फौरन आसमान की तरफ नजरें उठी, आंखों में आंसू आ गए। ए अल्लाह मैंने क्या कर लिया, मुझे माफ कर दे। फौरन तौबा की, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर कहा ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगर माफी नहीं हो सकती तो तू जो चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन मौला मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे आका को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। मेरे अल्लाह मैं बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोने लगा वो जवान। सोचो, गौर करो, नजर डाली नहीं थी, नजर पड़ गई और फेर ली। ये एहसास हम क्या क्या देखते, बल्कि क्या नहीं देखते। सोचो, उस जवान ने उसकी बोला मुझे माफ कर दे या मुझे सजा दे दे, बल्कि उसने इतनी बड़ी बात की, जो चाहे सजा दे मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन महबूब के दिल को तकलीफ पहुंची मुझे गवाना। फिर वो रोने लगी, मैं क्यों पैदा हुआ, काश मैं पैदा ही नहीं होता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मुझसे ये गुनाह होता, और न मेरे महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचती। अब वो बुलाने भी नहीं गए, वो वापस भी नहीं गए। वो जवान इब्न अब्दुल रहमान सीधा जंगल में चले गए। एक ही काम है, रोना रोना, सिर्फ रोना। और क्या रोते बोलते रोते, ए अल्लाह मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने, वरना उनको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, उनका दिल दुखेगा, उनका दिल टूटेगा। मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजर गए। वो हुजूर के दरबार में नहीं आते, अपने घर नहीं जाते, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, एक ही धुन है, अल्लाह मुझे माफ कर या सजा दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। काश ये एहसास हमारे दिलों में भी पैदा होता कि मैं सूद खा रहा हूं, मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं नापतोल में कमी कर रहा हूं, मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं औरतों पे बदनजरी कर रहा हूं, फिल्में देख रहा हूं, मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं दाढ़ी मुड़ा के गटरों में फेंक रहा हूं, मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने मस्जिदों को वीरान कर दिया, मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। कभी हमने सोचा जो नबी रात रात पर हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, आज हम उनका दिल दुखा रहे, उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे। सोचो तो सही, गौर तो करो, कलमा पढ़कर कर क्या रहे हैं, इश्क रसूल का दावा और इतना घिनौना जुर्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर सोचो, अल्लाह, जब कोई मुसलमान शराब की बोतल लेकर अपने हलक के नीचे उतारता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती है। जब कोई मुसलमान जिना के अड्डे पे जाकर जिना करता है, बदकारी करता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ होती है। नबी मर के मिट्टी में नहीं मिल जाता, हमारा नबी तो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। हुजूर किसी चीज से बेखबर नहीं है, अल्लाह ने उनको बाखबर रखा है। वो फरमाते हैं जब मैं मां के पेट में था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैं मां के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को भी सुना करता था। जो मां के पेट में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनते हैं, वो कब्र के पेट में रहकर क्या हमारे अमाल को नहीं देखते, हमारे अमाल को नहीं सुनते? इसलिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया है, उनके दिल का कुछ तो ख्याल करो। वो जवान जंगल में जाके एक ही काम है, रोना रोना, सिर्फ रोना। गुनाह क्या है? वो गुनाह है भी नहीं, सही माना में वो गुनाह नहीं था, लेकिन इश्क होता है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। 40 दिन हुए तो मेरे आका अलैहि सलाम ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब
फारूक आजम को और सलमान फारसी को कहा, ऐ सलमान और उमर, इब्न अब्दुल रहमान वो फुला जंगल में 40 दिन से बैठा हुआ रो रहा है, जाओ उसको खुला करके लाओ, उसको लाओ मेरे पास। इसका मतलब कौन कहा है वो सब जानते हैं। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से किसकी जात और रहमान छुप सकते हैं। और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जाओ इब्न अब्दुल रहमान को लाओ। फारूक आजम सलमान फारसी उस जंगल में गए तो देखा कि एक चरवाहा है। उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे, क्या तूने इब्न अब्दुल रहमान को, हमारे भाई को देखा है? चरवाहे ने कहा, तुम्हारा भाई कौन है, इब्न अब्दुल रहमान कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। अलबत्ता मेरे इस जंगल में 40 दिन से एक अजीब वाकया हुआ है। हुआ ये है, कोई दीवाना आ गया है जंगल में, और वो दीवाने को किसी से इश्क हो गया है, और वो इश्क करने वाले दीवाने से कोई गुनाह हो गया है। बस वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। एक ऐसा दीवाना मैं जानता हूं जिसको इश्क हुआ है किसी से, और उससे गुनाह भी हो गया है, और वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। बस वो रोता है, कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे जो चाहे तो सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे। और फिर वो बालों को पकड़ के कहता है, मैं पैदा क्यों हुआ, मैं दुनिया में क्यों आया, काश मैं दुनिया में ना आता, न मुझसे गुनाह होता, न मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंची। फारूक आजम ने कहा, सलमान मिल गए अब्दुल रहमान, इब्न अब्दुल रहमान। चरवाहे से पूछा, कहाँ है वो? कहा, वो कहाँ ये नहीं बता सकता। जब रात तारीख हो जाती है, देर गुजर जाती रात को, तो वो गार से निकलता है, अपने बालों को पकड़ के रोता। उसके रोने को देखकर मुझे भी रोना। 40 दिन हो गए, उसका यही हाल, उसकी यही कैफियत है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो, रात का इंतजार करो, रात होगी, वो जवान तुम्हें दिखेगा। जब रात हुई और रात तारीख हो गई, रात ने अपनी सियाह जुल्फों को जब जंगल पे बिखेर दिया और बहुत सियाह रात हुई, अचानक एक दर्दनाक रोने की आवाज निकली, ए अल्लाह मुझे माफ कर, या मेरे गुनाह की जो सजा है मुझे दे दे, जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे। फारूक आजम लपके इब्न अब्दुल रहमान को सीने से चिमटा ली। इब्न अब्दुल रहमान, चलो अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे, आका तुम्हें बुला रहे, चलो। इब्न अब्दुल रहमान ने कहा, उमर मेरे भाई, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई? क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई? फारूक आजम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता मेरे भाई, बस हुजूर का हुक्म था, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। इब्न अब्दुल रहमान ने कहा, उमर तुम्हारे बहुत एहसानात है मुझ पर, एक एहसान और करो, चूंकि हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं कर सकता आने से, लेकिन हिम्मत भी नहीं है कि मैं उनको मुंह क्या दिखाऊं, मुंह दिखाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आऊंगा जरूर, लेकिन एक एहसान करो, जब नमाज हुजूर पढ़ा रहे हो तब लेके चलना, ताकि हाजिरी भी हो जाए, हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैंने वो गुनाह कर लिया है। एक नाकर्दा जुर्म होगा उस जवान से, सामना करने की हिम्मत नहीं। हम क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाना? सफेद और खूबसूरत लिबास पहनकर इतराने वालों, क्या जितने चमकदार हमारे कपड़े होते हैं उतना चमकदार हमारा दिल भी है? जितनी बड़ी बड़ी बातें हम ज़बान से करते, क्या उतना बड़ा हमारा किरदार भी है? तो उस जवान ने कहा कि उमर, मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो तब लेके चलना, ताकि हाजिरी हो जाए, सामना ना हो। मुझे यहाँ डॉक्टर इकबाल याद आते हैं। इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तू इतना बड़ा आशिक रसूल है, तू जर्मनी तक जाता है, बरतानिया तक जाता है, मदीने क्यों नहीं जाता? तो इकबाल ने कहा था, इतना नवाजा अल्लाह ने कि जा सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा, हुजूर को मुंह क्या दिखाऊं। कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता,
शर्म इसलिए से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। उस जवान ने कहा कि मुझे नमाज के टाइम में चले। फारूक आजम हजरत सलमान फारसी इंतजार करने लगे सुबह का। जब फज्र का वक्त करीब आया, उस जवान को पकड़ा। चलने की ताकत भी नहीं थी उस जवान में, नहीं ताकत थी। 40 दिन तक न खाया हो, न पिया हो, न सोया हो। उस जवान में ताकत ही नहीं थी। पकड़ कर लेकर के चले। जब पकड़ कर लेकर के चले, मस्जिद नबवी में तो हुजूर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की आवाज जैसे उस जवान के कानों में आई, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल फारिग हुए और पूछा कि इब्न अब्दुल रहमान कहां है? कहां गए इब्न अब्दुल रहमान? तो फारूक आजम और सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो बेहोश पड़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। हुजूर के ठंडे ठंडे हाथ जब उनके हाथ में पहुंचे तो आंखें खोल दी और पहला सवाल ये किया, आका मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं हुई ना, आपका दिल तो नहीं दुखा ना, लेकिन मेरे करीम आका आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्न अब्दुल रहमान तुझे क्या हो गया? अर्ज़ किया, आका मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, मेरे जिस्म में ऐसा लगता है कि जैसे चोटियां चल रही है, चोटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका फरमाते हैं, इब्न अब्दुल रहमान क्या मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं? इब्न अब्दुल रहमान क्या मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं? अगर कोई बंदा कितना भी गुनाह कर ले और इस आयत को पढ़े तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कोई कितना ही बड़ा गुनाह करे और इस आयत की तिलावत कर ले तो अल्लाह उसको बख्श देता है। फरमाया इब्न अब्दुल रहमान आप लोग बैठ जाओ, आप हलचल करेंगे तो गुफ्तगू नहीं। आका ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें एक आयत पढ़ाता हूं, अगर तुम वो आयत पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। उनका हाथ पकड़ कर पढ़ो, मैं जो पढ़ाता हूं। हम सब भी पढ़ लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको पढ़ा। हुजूर ने फरमाया पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। उन्होंने ये आयत पढ़ाई। आका अलैहिस्सलाम ने कहा जो इस आयत को पढ़े अल्लाह उसे बख्श देता है। जैसे कि अब्दुल रहमान ने सुना, आंख में आंसू आ गए। कहा आका हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर दाइया कबीर हज़रत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला नूरी हुजूर दाइया कबीर वक़ार अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, आप सब नारे अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब जानते हैं कि आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर और हमारे कायद जिनकी खिताबत ने पूरी दुनिया में इश्क़ रसूल के हवाले से इख्तिलाफ पैदा किया है, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और अब आप उन्हीं का खिताब समाअत फरमाएंगे। लेकिन मैं चंद जुमलों में वो हदीस मुबारका जो बतौर मफ़हूम हमने छेड़ा था उसको मुकम्मल कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि जब बड़े बुजुर्ग आ जाए तो छोटों को बैठ जाना चाहिए। बड़ों की मौजूदगी में छोटों का बोलना ये बेअदबी से बहुत करीब से करीब तक होता है।
तो इसलिए किसी बेअदबी का इर्तिकाब न करें, क्योंकि हम लोग जो भी सुनते हैं अपने बड़ों से, बिलखुसूस हम जो कुछ भी टूटी फूटी गुफ्तगू करते हैं, ये हमारे अमीर की ये तरबियत की बरकतें हैं, उसका नतीजा है। तो लेकिन बात मुकम्मल करते एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम व आलिहि किराम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8 दिन हो गए इब्न अब्दुल रहमान फिर भी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं लाए। आका अलैहिस्सलाम ने 8 दिन के बाद फिर पूछा सलमान फारसी से, सलमान इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह शायद अब वो जिएगा नहीं, वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। उससे पता नहीं क्या हो गया है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, बस एक ही बात करते हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे या मुझे अपने गुनाह की सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की इत्तला मेरे महबूब को मत होने, मेरे आका को मत होने। बस वो एक ही बात करता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो आज हम उसके घर जाएंगे और उसके घर जाकर के गोया कि उसको ये बताया जाएगा कि हुजूर तुझसे नाराज नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुझसे राजी है। यानी आज उनको ये बावर कराया जाएगा कि हुजूर का दिल तुम्हारी वजह से नहीं दुखा है। आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर के तशरीफ लाए और इब्न अब्दुल रहमान के बिस्तर पर आकर हुजूर बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, और उनकी जुल्फे मेरी रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे मेरी रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वो उनके बिस्तर पे आके बैठ गए और कहा इब्न अब्दुल रहमान क्या हाल कर रखा है, और उनके सर को उठाया और उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। कुर्बान नालैन हुजूर की सर पे आए तो कहने वाले कहते हैं जो रखने को मिल जाए नाले पाक, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नालैन सर पे आ जाए तो आदमी कहे कि ताजदार हम भी हैं। जब हुजूर की गोद में किसी का सर आ जाए तो वो सर कितना कीमती होगा, उस सर की शान का आलम क्या होगा। इब्न अब्दुल रहमान का सर हुजूर ने गोद में रखा और इब्न अब्दुल रहमान ने धीरे धीरे वो सर खिसकाया और जमीन पे गिरा दिया। सरकार ने पूछा इब्न अब्दुल रहमान तूने अपना सर हमारी गोद से क्यों गिरा दिया? अर्ज करते हैं आका आपकी गोद बड़ी मुकद्दस है, आपकी गोद बड़ी मुकद्दस है, और ये सर बहुत गुनहगार और पापी है। इसमें जो 2 आंखें हैं उसने ऐसा जुर्म किया है कि ये सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं है। मुख्तलिफ मर्तबा ऐसा होता रहा, मुहिब और महबूब में ये नाज और अंदाज होते रहे। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ और महबूब को जाकर सलाम कहना, और सलाम कहकर ये बताना कि ए महबूब इब्न अब्दुल रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा लिए, इतने आंसू बहा लिए कि अगर ये तमाम कायनात के बराबर भी जराइम और गुनाह लेकर आएगा तब भी अल्लाह इसको बख्श देगा, तब भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्न अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या पैगाम भेजा। उन्होंने पूरी ताकत को समेटा, उठ करके बैठ गए, और जब उठ करके बैठे तो पूछा मेरे अल्लाह ने क्या कहा? तो आका फरमाते अल्लाह फरमाता है महबूब के दिल का ख्याल करते हुए तू इतना रो चुका है, इतने आंसू बहा चुका है कि अल्लाह तेरे लिए फरमाता है अगर पूरी कायनात के जराइम और गुनाह के बराबर भी तू गुनाह लाए तो भी अल्लाह तुझे बख्श देगा। इतना सुनकर चीख मारा और जमीन पे फिर कोशिश की। आका ने फरमाया अब ये नहीं उठेगा, एक गुनाह के एहसास में इसकी जान ले ली है, बल्कि ना करता गुनाह के एहसास में इसकी जान ले ली है। आका ने फरमाया इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं खुद उसके जनाजे में शरीक हूं। क्या नसीब है, जनाजे पे नबी का नाम पढ़ दिया जाए तो मग़फ़िरत हो जाती है। वो जाने दुआ अगर किसी के जनाजे में खुद तशरीफ लाए तो जनाजे वाले की शान का आलम क्या होगा। लेकिन जब जनाजा उठा, उस आशिक का जनाजा उठा, तो चूंकि आका खुद जनाजे में मौजूद थे तो बहुत सारे सहाबा भी जनाजे में आए, लेकिन जब मेरे आका जनाजे में पीछे पीछे चल रहे थे तो
पैर रख कर नहीं चलते थे बल्कि अपनी उंगलियां रख कर के चलते थे। सहाबा ने देखा, पूछा या रसूल अल्लाह, आज हम आपको इस तरह चलते देखते हैं कि आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क करने वालों के दिलों का हाल कि उनसे जुल्म होता है तो हुजूर के दिल का इतना ख्याल करते हैं। फारूक आजम का वो कौन कि लोग छोटे बड़े गुनाह में उलझे हुए हैं, इतना तो ख्याल करो कि तुम कितना ही छोटे से छोटा गुनाह करो, उस गुनाह से हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब अल्लाह, अगरचे हमारी नीयत ये नहीं होती लेकिन बहरहाल ऐसा तो हो रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हाल पे रहम फरमाए और हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचे, बल्कि अल्लाह हमसे वो काम ले कि हमारे आका हमसे खुश हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला जिन जिन लोगों ने तुझसे मकबूल वक्तों में जब जब भी दुआ की है उन सारी मकबूल दुआओं का वास्ता मौला आज हमारी इस फरियाद को सुन ले कि तू हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा और तेरे महबूब को हमेशा के लिए हमसे राजी फरमा दे। और हम यूं कहते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती कोई लफ्ज़िश कोई खता हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और हम सबको अल्लाह गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। व अवालिना इल्लल बलाग।